Very good morning to all of you. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Can you tell me what was the expression we got in yesterday's numerical? Expression क्या आया था हमारा कल के G bar picture में? C bar Okay, y is equal to b bar c bar plus CD. plus plus cd. This expression we got it from the tabular method. Okay, हम लोग क्या करेंगे for the same min terms, whether we will get the same expression using K-map, we will just verify it. So I am going to write a K-map for this particular numerical. Here, as there are 4 variables A, B, C and D, you need to write a 4 variable K-map here. The variables are A, B, C and D. Okay. So यहाँ पे क्या रहता है 0 0, here 0 1, 1 1 and 1 0. Similarly 0 0, 0 1, 1 1 and 1 0. Can you tell me for which numbers it is 1? कहाँ कहाँ पे 1 लिखना है मुझे यहाँ पे? 0 1 0 1, उसके बाद 3 7 3 है, यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 3 रहता है, 4 5 6 7. After that 8 9 okay 8 9 11 15 10 11 13 14 and 15. करेक्ट है मैंने जो जहाँ पे 1 लिखा है? Is it correct? No ma'am 15 आपने 14 पे लिखा ओके ओके 14 पे लिखा है, 15 पे 1 है. ओके, और ग्रुपिंग कैसे करोगे? 2 quad 2 कॉर्ड. कितने कॉर्ड्स बनेंगे? 2 2 कॉर्ड्स बनेंगे. पहला वाला कॉर्ड कौन सा रहेगा? कॉलम 1 का पूरा कॉलम. 1 1 का पूरा Third कॉलम. ओके, ये वाला कॉलम. ओके, एंड वन मोर कॉर्ड विल बी व्हाट? ये दोनों 1 and ये दोनों 1, isn't it? Okay, now what will be the expression from the K-map? What will be the expression? सेम ही रहेगा मैम, बी सी बार. Same expression, B bar C bar plus what? CD. Same expression we are getting. तो अगर ऐसा है तो like why we are writing a K-map here? Just for the purpose of verification. Because tabular method में इतने सारे steps आप लोग follow करते हो. So at the end you need to verify like whether whatever the expression I got, whether it is correct or not. From the K-map will be verifying it. Okay? आप लोग K-map लिखे ले लो आपके बुक में. ओके, नोट डाउन किया आप लोगों ने? Yes sir. ओके, अभी हम लोगों ने क्या देखा था? टेबुलर मेथड वाज अप्लाइड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन वेयर डोंट केयर कंडीशंस वर नॉट गिवन. हमने ऐसा एक एग्जांपल देखा जिसमें डोंट केयर कंडीशंस नहीं दिए थे. एंड वन मोर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल दैट कैन बी आस्क्ड ऑन द tabular method is, the question is like this. You note down the problem statement. Using tabular method,
using tabular method obtain minimal expression, minimal MINIMAL, minimal expression. In short, I'll write minimal expression. Okay, for the expression is like this: f is equal to summation m. The numbers are 6, 7, 8, 9 plus don't care conditions are also given. D. The don't care conditions are 10, okay, 11, 12, 13, 14 and 15. This is a given expression. For this expression, you need to find out a minimized expression using what? Tabular method. Okay. तो हम लोग tabular method में जो भी steps है वो follow करने से पहले what we will do is we will write the expression for this particular expression, minimized expression using K-map. हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका K-map लिखेंगे. Try to find out the minimized expression using K-map and then we will apply the tabular method. Okay, so here I will write a K-map for this particular expression. Okay, how many variables are there? How many variables are there? 4. 4 variables are there. So you need to write a 4 variable K-map here. You need to write 4 variable K-map. Okay, so variables का नाम अगर नहीं दिया है तो by default you can take it as A, B, C, D or whatever. You can take also W, X, Y, Z. Okay, 0, 0, 0, 1, 1, 1 and 1, 0. And यहाँ पे भी same है 0, 0. Okay, 0, 1, 1, 1 and 1, 0. Okay, so now we will write don't cares and 1 in the K-map. Tell me where is 1? Row wise and column wise. बताओ कहाँ कहाँ पे 1 है and कहाँ पे don't care है. Second row, third, fourth column. Second row, third and fourth column. मतलब यहाँ पे 1 है बोल रहे हो? यहाँ पे 1 है. हाँ मैम. और हाँ. last row, first, second row. 8, 9 ना? Okay. हाँ. 10 के जगह पे क्या है? 10, 11, all these are what? यहाँ पे 10 है. 8, 9, ये 10 हो गया आपका. ओके, और ये क्या है? 11 है. एंड यहाँ पे 12 है. ओके, 13, ओके, 14 एंड 15. ओके, ग्रुपिंग कैसे होगा बताओ? एक ऑक्ट, एक कॉर्ड. ओके, एक ऑक्टेट बनेगा. दिस विल बी वन ऑक्टेट एंड और एक क्या बनेगा? कॉर्ड बनेगा. एग्जैक्टली, ये आपका एक कॉर्ड है. ओके, व्हाट इज द एक्सप्रेशन? What is the expression for the f? F will be equal to what? A plus BC. A plus BC. Very good. A plus BC is the perfect answer. Correct answer. A plus BC. A plus BC. Okay. ये जो expression है आपने find out किया है
यूजिंग व्हाट, के मैप। बट एग्जाम्पल में उन्होंने पूछा है कि ट्राई टू फाइंड आउट द मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन यूजिंग द टेबुलर मेथड। ओके, आप लोग क्या करो, पहले ये के मैप नोट डाउन करो एंड देन वी विल गो फॉर द टेबुलर मेथड। ओके, तो सब लोग के मैप नोट डाउन करो। होप आप लोगों ने नोट डाउन किया है। आप लोगों ने लिखा है के मैप? हाँ मैम। Okay. Now we will apply the tabular method for the same. Okay, tabular method हम लोग apply करेंगे। We will start with the tabular method. Okay, बताओ पहला स्टेप क्या है tabular method में? What is the first step in tabular method? Group them according to the ones. हाँ, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सारे मिन टर्म्स को एक साइड में लिखना है एंड उसको क्या करना है, बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। देन यू गो फॉर अरेंजमेंट ऑफ द मिन टर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वंस। तो पहले मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, व्हाट आई विल राइट इज मिन टर्म्स, ओके, एंड देयर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। एक लाइन में, एक कॉलम में सारे मिन टर्म्स लिखेंगे एंड दूसरे कॉलम में वी विल राइट देयर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। वी विल राइट देयर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। चलो फटाफट बताओ कौन से मिन टर्म्स दिया है। मिन टर्म्स कौन से है एग्जाम्पल में? 6, 7, 8, 9। ओके, पहला मिन टर्म है 6, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन उसका 0 1 1। ओके, 0 1 1 0 साइमल्टेनियसली आप लोग भी लिखो। एंड 7 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 1 1 1। 0 1 1 1। ओके, 8 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 0। 1 0 0। ओके, 9 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 0 1। 1 0 0 1। 10 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 1 0। ओके, 1 0 1 0। 11 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 1 1। 1 0 1 1। 12 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 1 0 1 1 0 0। 13 1 1 0 1। 1 1 0 1। 14 1 1 0। okay, 1 1 0। and last one more min term is 15। 15 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? Quad 1। all ones, 4 times ones। ओके, ये हो गया आपका पहला स्टेप। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ग्रुप करना है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द वंस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ग्रुप ग्रुप ग्रुप। ओके, ग्रुप। मैम डोंट वालों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना का क्या इसमें? हाँ, उतना ही इम्पोर्टेंस जो डोंट केयर आपको दिया है ना न्यूमेरिकल में, उसको भी लेना है, सारे डोंट केयर कंडीशंस को, और उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। हाँ, ग्रुप, min terms, and what is the one more column? What is the one more column? Binary। Okay, binary representation। binary representation। ठीक है, ये हमारा सेकेंड टेबल हम लोग लिख रहे हैं। ओके, नाउ टेल मी, अभी आपको
ये सारे मिन टर्म्स को ऐसे अरेंज करना है, नंबर ऑफ वंस इन दैट पर्टिकुलर मिन टर्म मस्ट बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे कहीं पे जीरो तो नहीं है, आपको नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, ऐसे नंबर ढूंढो जिसमें नंबर ऑफ वंस आर इक्वल टू 1। ओके, टेल मी विच आर द नंबर्स। हाँ, 8। तो इधर क्या लिखोगे आप, ग्रुप का नाम लिखोगे 1। ओके, मिन टर्म का क्या लिखोगे नाम, 8। ओके, 8 एंड उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या लिखोगे, M8 ना मैम, सॉरी M8 ना मैम। ओके ओके ठीक है, M8 लिखती हूँ। नहीं तो 8 लिखा तो भी मैंने M8 लिखा हुआ था, नो प्रॉब्लम, आप ऐसे लिखते हो तो भी चलेगा। सिर्फ 8 लिखा तो भी नो प्रॉब्लम, M8 ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो वैसे लिखते हैं। एंड यहाँ पे आपके वेरिएबल्स क्या है, A, B, C एंड D। इधर भी आपको लिखना पड़ेगा A, ओके, B, C एंड D। ओके, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1,000,000। ठीक है, और कोई नंबर है जिसमें नंबर ऑफ वंस आर इक्वल टू 1? नो। ओके, तो अभी आप मुझे नेक्स्ट क्या लिखोगे, ग्रुप का नाम क्या लिखोगे आप, 2 लिखोगे। 2 का मीनिंग क्या है, जिस नंबर में नंबर ऑफ वंस आर इक्वल टू 2। चलो बताओ कौन से नंबर से, पहला नंबर कौन सा आएगा, 6 आएगा। वेरी गुड, 6 आएगा। ओके, आयुष बोल रहा था M6 लिखना है हमारा, I'll write M6 only, M suffix 6 एंड उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, 0, 1, 1, 0। ओके, नेक्स्ट नंबर 9 ओके 9 है, 6 के बाद 9 आएगा एंड व्हाट इज इट्स रिप्रेजेंटेशन, 1001 ओके। और कोई नंबर है, 10 ओके वेरी गुड, 10 भी है, 10 एंड उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1010। ओके, इज देयर एनी नंबर, 12 ओके 12 भी है, ओके 12 भी है, M12। ओके, 1100. ओके 1100। एनी अदर नंबर, No. ओके ओके, तो ये हो गया आपका ग्रुप 2। नेक्स्ट क्या लिखोगे, नेक्स्ट क्या लिखोगे, Group 3 Group 3. ग्रुप 3। और नंबर्स क्या आएंगे बताओ, पहला नंबर क्या आएगा, 7 M7, M11, 7 M13. ओके 7 आएगा, 7 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन इज 0, 111। उसके बाद 11 11. ओके 11 आएगा एंड व्हाट इज इट्स रिप्रेजेंटेशन, 10, 1011. 11 ओके 101। 11 के बाद 13 13 14 ओके 13 14। 13 का रिप्रेजेंटेशन है 1101। 01. ओके 1101 एंड नेक्स्ट 111. नंबर इज व्हाट, 14, 1110। 0. ओके, हो गया, सारे नंबर्स लिखा आप लोगों ने। हमने अभी 15 का अलग ग्रुप बनाएंगे. हाँ 15 का अलग ग्रुप बनाएंगे बिकॉज उसमें 4 वंस है ना, तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा आपको। और नंबर मिन टर्म क्या लिखना है, M सफिक्स 15। ओके, एंड यहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे, 4 times 1। ओके, ये तो समझ में आया आपको क्या कैसे लिखना है ग्रुपिंग, इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ वंस। ओके, नेक्स्ट टेबल में क्या क्या लिखते थे हम लोग, कैन यू टेल मी, नेक्स्ट टेबल में क्या लिखते थे हम लोग, Group matching pairs ओके ग्रुप है ना, ग्रुप कम होते जाते हैं ना,
तो यहाँ पे मैं ग्रुप को नहीं लिखूंगी. यू कैन राइट ग्रुप ऑल्सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ग्रुप. आई विल स्किप दैट कॉलम. एंड ग्रुप के बाद क्या रहता है हमारा कॉलम? मैचिंग पेयर्स. Okay, matched pairs, matched pairs, matched pairs. Okay, and one more group is what? Sorry, one more column is what? Binary. Binary. Binary representation. Binary representation. Okay, you need to write a variable, sir. It is compulsory. A, B, C, and D. Okay. Now this is our next table. This is our next table. ओके. हाँ, अभी आपको क्या करना है? फर्स्ट ग्रुप मस्ट बी कंपेयर्ड विथ व्हाट? सेकंड ग्रुप. मतलब 8 को, नंबर 8 को 6 के साथ कंपेयर करना है, 9 के साथ कंपेयर करना है, 10 के साथ कंपेयर करना है, एज वेल एज विथ 12. एंड एक ही पोजीशन पे उसका नंबर डिफर होना चाहिए. देयर मस्ट बी चेंज इन ओनली वन वेरिएबल. देन ओनली वी से दैट कंपैरिजन इज पॉसिबल देयर. ठीक है. अभी आप 8 को 6 के साथ कंपेयर करो. जस्ट नहीं आएगा. 8 को अगर आप 6 के साथ कंपेयर करोगे, कंपैरिजन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. Okay, why it is not possible? Can you tell me the reason? Ma'am, because A और B पे difference. Okay, it is changing at the position A as well as B as well as C. तीन जगह पे variable change हो रहा है. So we cannot compare 8 with 6. 8 with 9, is it possible? 8 with 9, is it possible? Okay. Yes. तो अगर possible है तो क्या करना पड़ेगा आपको? 8,9 लिखना. 8,9 लिखना है. उसके साथ और एक क्या करते हो आप? 8,9 तो लिखना है. 8,9 लिखना है तो और एक काम क्या करना है? M8 M9 की जगह टिक. ओके, यहाँ पे टिक मार्क करना पड़ेगा आपको M8 और M9. ओके. एंड यहाँ पे डैश कहाँ पे लिखोगे बताओ? डी के जगह पे आप डैश लिखोगे. Let me ask somebody. मैं किसी एक को पूछूंगी. Next comparison, is it possible or not? Wait, don't tell the answer. Anuj Patil, can you unmute yourself? Anuj Patil. Anuj Patil. Yes, ma'am. Anuj, you just tell me whether comparison of 8 and 10, is it possible? Yes, ma'am. Possible. Possible है. Okay. Yes. Possible है तो कहाँ पे डैश आएगा अनुज? C पे. C पे आएगा. Okay. एक बार आपने कंपेयर किया एंड यहाँ पे आप लिखेंगे 8 कॉमा क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे. ओके. और क्या करोगे बताओ? 10 को टिक मार्क. 10 को टिक मार्क करना है. ओके. यहाँ पे क्या लिखना है बताओ? 10-0. 10-0. ओके. हाँ. अनुज बताओ 8 और 12 का कंपैरिजन पॉसिबल है? Yes, ma'am. Possible. It is possible. Exactly correct answer 100%. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 8,12. 8,12 लिखोगे. वेरी गुड. और कहाँ पे डैश आएगा अनुज? डैश बी पे. ओके. 1 डैश क्या लिखोगे? 0. 0. मैम ओके. ओके.
वेरी गुड। 12 को टिक मार्क करना है। सारे नंबर के साथ आपने कंपैरिजन किया तो मतलब ये क्या हो गया, इसका कंप्लीट हो पहला ग्रुप का कंपैरिजन खत्म हो गया। ओके, थैंक यू अनुज। हाँ, नेक्स्ट क्या करोगे आप लोग? ग्रुप 2 को ग्रुप 3 से कंपेयर करेंगे। ओके, आप क्या करेंगे, ग्रुप 2 को ग्रुप 3 के साथ कंपेयर करना है। इसका मीनिंग क्या है, 6 मस्ट बी कंपेयर्ड विथ 7, 11, 13, 14। 6 को ये चारों नंबर के साथ कंपेयर करना है। 9 को 7, 11, 13, 14 को साथ कंपेयर करना है। 10 को 7, 11, 13, 14। 12 को 7, 11, 13, 14। ऐसे सारे नंबर के साथ हर एक मिड टर्म कंपेयर करना है ग्रुप 2 का। ओके, लेट मी आस्क Durvesh Chaudhary, can you unmute yourself? Durvesh. Durvesh. Durvesh, can you unmute yourself? Sanket. Sanket, can you unmute yourself? Sanket. Sanket. Sanket Waluns. Sanket Satyam. यस मैम। ओके, सत्यम आप बताइए, यहाँ पे कंपैरिजन 6 का कंपैरिजन किसके साथ पॉसिबल है? 7 के साथ। 7 के साथ पॉसिबल है, तो आप क्या लिखेंगे, ये टेबल में क्या लिखेंगे? मैम 6,7। ओके, 6,7 लिखेंगे आप। ओके, और क्या करेंगे? और फिर 0, 1, 1 डैश 0, 1, 1 1 डैश। डैश। और क्या करना पड़ेगा आपको? मैम टिक मार्क। ओके, 6 और 7 के सामने टिक मार्क करना है। ओके, आगे बताओ। संकेत, संकेत में क्या नाम है आपका? सत्यम। हाँ, सत्यम। 6 और क्या करना पड़ेगा? 11। 6 और 11 कंपैरिजन पॉसिबल है क्या सत्यम? नो मैम। ओके, नॉट पॉसिबल। 6 और 13 का पॉसिबल है? एक मिनट मैम। हाँ, नो मैम। नॉट पॉसिबल। ओके, 6 और 14 का पॉसिबल है? यस मैम। ओके, 6 एंड 14 आप यहाँ पे लिखेंगे। यस मैम। ओके, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? डैश 1 डैश 1। आगे? आगे क्या लिखेंगे? 1 ओके, 1। 0। ओके, वेरी गुड, 0। ओके, और एक काम रह गया आपका, क्या करेंगे आप? टिक मार्क का। ओके, टिक मार्क करेंगे। थैंक यू सत्यम। ओके मैम। ओके, अभी 9 का कंपैरिजन किसके साथ पॉसिबल है? कैन यू टेल मी 9 इज पॉसिबल विथ विच नंबर? एनीवन कैन आंसर? 9। 11 ओके, 9 का 11 और 13 के साथ पॉसिबल है 9 का? इज इट पॉसिबल विथ 13? yes ओके, यस मैम। Yes, ओके ma'am. ओके, पहले क्या लिखेंगे? 9,11 लिखेंगे। 9,11। उसके बाद इमीडिएटली हम लोग क्या करेंगे, 11 के सामने टिक मार्क करेंगे। 11 के सामने टिक मार्क करेंगे, और यहाँ पे बताओ क्या लिखना है? यहाँ पे क्या लिखना है? 10-1 1 0 dash 1 10-1। ओके, और क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? 9। 9-13 ओके, 9,13। 9,13।
हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? इमीडिएटली 13 के सामने टिक मार्क करना है आपको. ओके, एंड व्हाट इज अ नंबर हियर? 1-01. 1-01. और किसी के साथ कंपैरिजन पॉसिबल है 9 का? 9 का किसी के साथ कंपैरिजन? ओके, नॉट पॉसिबल. ओके, अभी क्या करेंगे आप? 10 को 7 के साथ कंपेयर करेंगे. इज कंपैरिजन पॉसिबल? No, ma'am. 10 with 11 possible? Yes. 10 with 11? Yes, yes. ओके, पॉसिबल है. 10 with 11 पॉसिबल है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 14 के आप? साथ भी possible. ओके, 10 with 11 क्या आएगा बताओ? कहाँ पे डैश आएगा? 101 dash. 1-0-1 dash. ओके, 10 with 13? No, with 14. With 14 it is possible? हाँ 10 मैम. with 14. Okay, 10 with 14. And what is the representation? 1-10. 1-10. 1-10. Okay. 10 का सबके साथ कंपैरिजन हो गया. Now 12 with 7, is it possible? No. Okay. 12 with 11 possible? No. 12 with 12 is 13? possible to 14. 12 12 with with 13. ओके, 12 with 13, 14. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? 12 with 13. 12 with 13. What is the representation? 110 dash. 110 dash. 110 dash. And 12 with 14 is also possible? 12 with 1-1 dash. क्या आएगा? 11? 1-1-0. ओके, वेरी गुड. 11-0. ओके, सारे कंपैरिजन आपने किया. 2 का 3 के साथ सारे नंबर का कंपैरिजन हो गया. That means we are done with this one. Now next, what you need to do? You need to compare group 3 with what? Group 4. That means 7 must be compared with 15, 11 with 15, 7 with 15, 11 with 15, 13 with 15, and 14 with 15. Okay. So 7 with 15, is it possible? Yes. Okay. Yes. Okay, 7 with 15 possible है. Immediately tick mark करने का. 7 with 15 it is possible. Okay, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? Dash. -111. Dash 111. Okay. Is 11 with 15 possible? Yes. Okay, 11 with 15 भी possible है. Okay, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 1-1-1. 1-11. Next, is 13 with 15 possible? Yes. Okay, 13 with 15 is also possible. और कहाँ पे डैश आएगा? C. C पे डैश आएगा. 1-1-1. What is the one more possibility? Here I'll write. Here I'm writing 14 with what? 15. 14 with 15. And क्या लिखोगे आप यहाँ पे? 1-1 dash. Okay. 1-1-1. Okay, 1-1 dash. 1-1 dash. Hope so simultaneously आप लोग टेबल नोट डाउन कर रहे हो. Yes, ma'am. ओके, नोट डाउन किया आपने टेबल? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? आफ्टर दिस व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? Again matching. ओके, अगेन आपको कंपेयर करना है ये ग्रुप को इस ग्रुप के साथ. ओके, यहाँ पे क्या करोगे बताओ? 8-9 है. 8-9 में लास्ट पोजीशन पे डैश है. तो नेक्स्ट ग्रुप में आप
नंबर ढूंढोगे जहां पे लास्ट पोजीशन पे डैश है, सी हियर 6 7 पे है लास्ट पोजीशन पे डैश, बट कंपैरिजन पॉसिबल है क्या? नहीं मैम। नहीं पॉसिबल। और 10 और 11 पे है लास्ट पोजीशन पे डैश, 10 और ये देखो यहाँ पे, इस कंपैरिजन पॉसिबल? Yes. यस। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी बिकॉज, शैल आई टेक द नेक्स्ट पेज? Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैच्ड पेयर्स and binary representation। ये तो वेरिएबल्स कंपल्सरी लिखना ही है आपको, A, B, C and D। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया था, हाँ, किसका किसका कंपैरिजन बोला था हमने, 8 9 10 11, है ना? 8 9 यहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल है करके आपने बोला है, तो उसको क्या करो आप, टिक मार्क करो 8 9 और क्या टिक मार्क करना है, 10 11, और कहाँ पे डैश आएगा, कहाँ पे डैश आएगा, सी एंड डी। पोजीशन सी पे डैश आएगा। तो व्हाट आई विल डू इज, ये मर्ज हो गए क्या दोनों? ओके, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, एट 9 और क्या लिखेंगे, 10 11। ओके, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1 0 डैश डैश, बराबर है ना? इज इट करेक्ट? यस मैम। ओके, कहाँ गया वो हमारा, हाँ, इधर थे हम लोग। सी नाउ, अभी किसी के साथ और किसके साथ इसका पॉसिबल है क्या, 8 9 का? यहाँ पे देखो लास्ट पोजीशन पे डैश, 12 13, बट कंपैरिजन पॉसिबल है क्या? यस। यस। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, शैल आई पुट टिक मार्क हियर, आपको समझेगा, यहाँ पे जगह नहीं है, 12 13 आप यहाँ पे टिक मार्क करो। आई विल आल्सो रब इट। ओके, टिक मार्क किया आपने, और क्या लिखोगे आप, पेयर क्या लिखोगे, 8 9 12 13, 8 9 12 13। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है 8 9 12 13, और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बता, उसका 1 डैश रिप्रेजेंट 0 डैश। 1 डैश, 1 dash 0 dash। ओके, 1 डैश 0 डैश, वेरी गुड। ओके, बताओगे क्या आप लोग मुझे कंपैरिजन क्या क्या पॉसिबल है? यस मैम। ओके, टेल मी कंपैरिजन, उसके बाद क्या आएगा, 8 10 9 12। 8 10 9 11। 8 10 और क्या आएगा, 9 11। 9 11, 8 10 9 11, 8 10 9
11 और उसका रिप्रेजेंटेशन इसके जैसे ही आएगा ना 10 डैश डैश ओके डैश डैश नेक्स्ट कंपैरिजन 8 10 8 10 12 14 8 10 12 12 14 साइमल्टेनियसली आप टिक मार्क कर रहे हो ना हाँ मैम 8 10 12 14 ओके और उसका रिप्रेजेंटेशन 1 डैश डैश 0 1 डैश डैश 0 बराबर है उसके बाद 8 12 8 12 10 14 और एक छोड़ दिया क्या आपने हाँ एक एक रह गया एक कौन 8 सा 12 रहेगा 9 30 8 12 8 12 9 8 9 12 13 हो गए 8 9 8 12 नहीं 8 12 9 13 भी रह गए हाँ 8 12 9 13 रहेगा हम्म देखो पहला वाला है 8 9 10 11 8 9 12 13 के साथ पॉसिबल है बराबर है मैम हाँ 8 10 9 11 8 10 12 14 बराबर है इसके बाद आप क्या बोल रहे थे 8 12 9 13 8 12 9 13 और 8 8 12 10 14 रहेगा क्या आएगा 8 12 लेट मी चेक वन सेकेंड पहला वाला जो है आपका 8 9 10 11 बराबर है 8 9 12 13 बराबर है 8 10 9 11 बराबर है 8 10 12 14 बराबर है 8 12 9 13 भी बराबर है ओके करेक्ट है एंड इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है 8 12 9 13 का 1 डैश 0 डैश 1 1 dash डैश 0 dash ओके वेरी गुड 1 डैश 0 डैश इसके बाद क्या आएगा 8 12 10 49 8 12 9 14 8 12 10 8 14 ओके 10 14 बराबर 8 12 10 14 एंड उसका रिप्रेजेंटेशन 1 1 डबल डैश डैश 0 डैश 0 1 डैश 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 0 बराबर है 1 डैश डैश 0 ओके नेक्स्ट नेक्स्ट अबे वो नेक्स्ट ग्रुप लेना पड़ेगा हो गया यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप लेना 6 पड़ेगा मतलब इधर खत्म हो गया है क्या नहीं हाँ नहीं फर्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है पता है क्या आपको आपने क्या किया 8 9 8 10 ओके 8 12 सबका हो गया ना ठीक है मतलब अभी क्या करना पड़ेगा आपको इसको इसके साथ कंपेयर करना है ना हाँ मैम 6 7 हाँ लगा हाँ हाँ बराबर है बराबर है मतलब ये इधर खत्म हो गया ऐसे बोल रहे हो आप सही है क्या हाँ ऐसे मैम बोल रहे हो ना श्रेयस हाँ हाँ मैम हाँ वो ग्रुप है ओके ये ग्रुप हो गया मतलब आपको क्या करना पड़ेगा ये जो है मतलब 6 7 को 7 15 के साथ कंपेयर करो 11 15 13 15 14 15 मतलब यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे डैश है मतलब इसको 14 15 के साथ ही कंपैरिजन पॉसिबल है इसका इजंट इट तो ऐसे आप लोग क्या करो कंपैरिजन करके कौन से नंबर्स आएंगे ये मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताओ ठीक है तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ है नेक्स्ट लेक्चर में आप बताएंगे कि इधर कंपैरिजन क्या क्या आते हैं टिक मार्क करके एंड देन वी विल राइट अ कंप्लीट एक्सप्रेशन ओके ठीक है इज देयर एनी डाउट हियर वही बट आपका क्लास का स्ट्रेंथ बहुत ही कम है